Hello, viewer. Welcome to My Analytics School YouTube channel. So from today, we are starting the interview experience series again, and this is for particularly for the placement drive, which is going right now in 2023 to 24 cycle. So for the first interview, we have with us Sabya Sachi, who is from NIT Rourkela, and he was also part of the mass batch. So we have with us Sabya Sachi, who was selected as a data scientist in Tredence. So I welcome you to this interview, Sabyasachi. So can you just tell about yourself to our audience? Hello, sir. Hello, everyone. My name is Sabyasachi Prushti. Currently, I am a senior undergraduate at National Institute of Technology, Rourkela, and specialization in industrial design. I am an upcoming data scientist at Tradens. Okay. So first of all, congratulations. Thank you, So sir. let's start this interview. First question everyone will have in their mind will be like, can you just walk ourselves about the hiring process of Tradence? Okay, so the hiring process was actually of consisting of 4 rounds. All the 4 rounds are first one is online test. There are no resume shortlisting, and Tradens was the first company visited our campus of analytics sector. It was the first company visited. So there was no resume shortlisting. First of all, it was online test. In then second round, one is communication assessment, and there are two interview rounds. One is only technical, and the last one is technical, mostly technical plus HR. Okay, got it. So it consisted, just to summarize, it consisted of four rounds. First was OT, online test. Second was communication assessment round. Third Yes. was tech interview, and then tech plus HR interview. Yes. All right, great. So let's talk about these four only. So what was the content of OT? Like what questions were asked, what topics were covered in the online test? Okay. In for the data science profile, when Tradens conducted this test, it was of time of 2 hours, and it consists of first it consisted of pseudocodes. Pseudocodes of not any specific language, but ऐसे मतलब स्यूडो कोड था जो मतलब सॉल्व करना था, उसको एमसीक्यू में था आंसर उसका. देन मोस्टली क्वेश्चंस जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ऊपर फोकस था, क्योंकि डाटा साइंस का प्रोफाइल था. देन नेक्स्ट पाइथन का कोडिंग था, टू कोडिंग क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, एंड नेक्स्ट थ्री एसक्यूएल क्वेश्चंस. And apart from this, five verbal questions, English, and five aptitude ability questions. All right, got it. So pseudo codes, then machine learning DL के कुछ MCQs थे, उसके बाद SQL और Python के भी questions थे, SQL and Python के. इसके बाद तुम्हारा सेकंड राउंड था कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड। तो उसमें कैसा राउंड था वो, मतलब कितने टाइम बाद था, जस्ट ऑनलाइन टेस्ट के बाद ही था, या उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड थी? In online test, the coding questions are like easy to intermediate level. So most of the students did not expect actually students will ask coding questions. Then out of 350 to 400 students, only 35 got selected for the communication assessment round. Communication round was basically of AI based, of 40 minutes में, मतलब ऐसे कि टॉपिक दिया रहता था, मतलब 2-3 टॉपिक, उसमें हम लोग को वो टॉपिक के बारे में एक एक मिनट 1.5 मिनट बोलना था. बाकी नेक्स्ट उसमें कुछ लिसनिंग टेस्ट था, फॉरेन एक्सेंट में ऐसे पैसेज एक रीडिंग करेंगे, उसके बेस्ड हमको एमसीक्यू आंसर देना था. उसमें ग्रामर टेस्ट ऑल्सो था. ओके ओके। तो ऐसे करके वो पूरा 40 राउंड थी, मतलब उसमें आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स आफ्टर कम्युनिकेशन असेसमेंट 24 स्टूडेंट्स रिमेन. सो तुम्हारा स्टार्ट जो टॉपिक्स थे जिनके बारे में तुम्हें बोलना था एक डेढ़ मिनट तक, वो किस टाइप के, कोई एचआर क्वेश्चंस थे या फिर कोई जनरल कुछ No, भी no, तुम्हें? no such HR questions. Only just basic, like as far as I remember, my topic was like, what is your favorite season and why do you like it? Who is your great inspiration? Such questions was there. Means general questions you can easily say 1 to 2 minutes. ऑल राइट, गॉट इट। सो ये कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड था, इसके बाद 35 में से 24 पीपल गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट टेक राउंड। Yes, sir. ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट टेक राउंड देन। टेक राउंड में क्या सेटअप था, कितनी देर चला, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेनली किन चीजों पे एम्पैथाइज किया गया था? Okay. So in technical round, it was basically of 30 minutes. 30 minutes का मतलब इंटरव्यू था. So इसमें ज़्यादा रेज्यूमे बेस्ड नहीं गए. डायरेक्टली आफ्टर इंट्रोडक्शन दे स्टार्टेड आस्किंग मी कोडिंग क्वेश्चन टू स्क्रीन शेयर करके पाइथन का कोडिंग क्वेश्चन जो दिए और उसको कोड करना था उनके सामने.
तो एक कोडिंग क्वेश्चन मेरे को दिए लाइक एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम के ऊपर, मुझे जितना याद है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम के ऊपर, तो वो मैंने कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे को प्रोजेक्ट्स, मतलब व्हाट हैव यू डन इन योर प्रोजेक्ट में आप क्या किए हो। तो देन आई हैव एक्सप्लेन्ड माय प्रोजेक्ट, and from that project they asked me some machine learning questions, and some pandas questions also, pandas library they also asked to code in pandas also। नेक्स्ट में मेरे को एसक्यूएल में पूछे क्वेश्चन, एसक्यूएल से मतलब at the end part SQL was covered, 2 to 3 questions I was able to answer only one SQL question, because मैंने पहले मतलब स्टार्टिंग में पाइथन और मशीन लर्निंग का क्वेश्चन आंसर दे दिए थे, तो लास्ट को SQL जो क्वेश्चन जो आंसर नहीं दे पाया था, तो उतना मतलब अफेक्ट नहीं किया मेरे इंटरव्यू में। तो फाइनली आफ्टर टेक राउंड वी 10 people shortlisted after the technical round। So just to summarize, it started with Python coding questions, जिसमें तुम्हें स्क्रीन शेयर करने बोला गया था। Just to confirm, ये ऑनलाइन सेटअप में था, राइट, इंटरव्यू? यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। देन उसके बाद तुमसे प्रोजेक्ट्स के अराउंड चीजें पूछी थी, जो तुमने प्रोजेक्ट मेंशन किए थे। कौन से प्रोजेक्ट मेंशन किए थे तुमने? मैंने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे जो, और एक लोन एप्लीकेशन प्रेडिक्टर था कि जो भी लोग लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में, तो उनका लोन अप्रूव उनके डाटा के अकॉर्डिंग बेस्ड, और उनका लोन अप्रूव होगा या नहीं, तो वो प्रेडिक्ट करना था। मतलब वो मशीन लर्निंग मॉडल मैंने रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम एंड डिसीजन ट्री आई हैव यूज्ड, एंड मॉडल का बेस्ड पे मतलब मॉडल प्रेडिक्ट करना था कि वो लोन अप्रूव होगा या नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के अराउंड मेरे को मतलब मशीन लर्निंग के क्वेश्चन 2-4 सवाल पूछे थे, which was I able to answer। एक प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट मेंशन थे तुम्हारे रिज्यूमे में? दो प्रोजेक्ट्स मेरे रिज्यूमे में मेंशन थे, बट वो मेरे को ऑप्शन दिए कि कोई भी एक प्रोजेक्ट के बारे में तुम एक्सप्लेन करो। ओके ओके, गॉट इट। देन उसके बाद तुम्हारा एसक्यूएल के क्वेश्चंस तुमसे पूछे गए थे। जस्ट सो यू आंसर्ड ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस, तो तुम्हारे एसक्यूएल के क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहे थे, तो तुमने उसको टैकल कर लिया। तो ये तुम्हारा पहला टेक राउंड था, जो 30 मिनट्स तक चला था। इसके बाद तुमने मेंशन किया टेक और एचआर राउंड था, तो उसमें क्या सेटअप था, कितने लोग थे, क्या इंटरव्यू में? In the last round of interview, panel was of 2 people. One was senior data science consultant and Tradens, and other one is the HR one। Okay, so first the senior data science consultant, he asked me about resume based actually me what I have done in my internship के related मेरे को सवाल पूछे कि आपने जो डीप जॉब टेक्नोलॉजीज में आपने क्या काम किया है, एंड उसमें क्या क्या एल्गोरिथम यूज किए हैं। जैसे कि मैंने योलो यूज किया था, तो मेरे को योलो के बारे में थोड़ा पूछे, मतलब ज़्यादा मैथमेटिकल इंट्यूशन नहीं पूछे कि योलो क्यों यूज किए, आपका एक्यूरेसी कितना था, तो फिर उसके बाद का रोल क्या था इंटर्नशिप में, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, सिंपल से क्वेश्चन थे। एंड नेक्स्ट की उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स से सवाल करने लग, मतलब सिंस इट वाज द डाटा साइंस प्रोफाइल, मोस्टली मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इनके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो इन सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू दे आल्सो आस्क्ड me questions like about box plot and like some A/B testing, and then lastly 5 to 10 minutes of interview, HR took over, and he asked some questions, simple question like your family background, and what have you learned in National Institute of Technology, and why you choose to NIT and why not some other government colleges, एंड सम सिंपल क्वेश्चन। उनको एचआर से उतना मतलब नहीं था, ज़्यादा मतलब टेक्निकल, मोस्टली टेक्निकल ही था इसमें। And out of 10 people, we 6 people got selected at the final round. So this process started with 400 people applying for the company, and then 35 got shortlisted for communication enhancement round, because वहाँ पे लोगों ने अच्छे से डीएस से प्रिपेयर नहीं किया था, तो उस वजह से कोडिंग क्वेश्चंस की वजह से इतने लोग हट गए। देन कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड के बाद 24 पीपल गॉट थ्रू। उसके बाद यू मेंशन कि फॉर द टेक राउंड, इन द टेक राउंड 10 पीपल गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, एंड आउट ऑफ 10 6 गॉट सेलेक्टेड। सो यू कैन सी एक बहुत ही मतलब रिग्रेस प्रोसेस रहा होगा ये। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे जो रिजेक्ट हो गए, what mistakes they could have made during the process? Actually मतलब since it was a data science profile, तो क्वेश्चंस उनका बेसिकली मतलब टेक ओरिएंटेड था, लाइक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, जैसे कि मतलब मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट्स है मेरा, तो मशीन लर्निंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रादर देन बीइंग सम रैंडम पजल्स और गेसमेट्स। वो सब सवाल नहीं पूछ रहे थे, ज़्यादा टेक ओरिएंटेड थे। और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे,
डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग ऐसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, तो ज़्यादा उन लोग मशीन लर्निंग के बारे में मतलब उनको पता नहीं था। तो देयर आई गॉट ए एज, क्योंकि मेरे पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ऊपर मेरा काम कर रखा था मैंने इंटर्नशिप में, और मेरे 2-2 अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। तो उनके ऊपर मेरा एज ये रहा और उन लोगों ने वहीं पे गलती की। उनका मेरा रिज़्यूमे उन लोगों से ज़्यादा स्टैंड आउट किया। So, how did you came to know about My Analytics School? Like you were the part of the My Analytics School batch, 1 or 2 batch. So, how you came to know about us? Why you choose us? और तुम्हारा experience कैसा था? मतलब ऑनेस्टली माय एक्सपीरियंस विद माइनेट यू नो माइनेट स्कूल के बारे में मतलब लेट्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप से मतलब माइनेट स्कूल का एक सेशन चल रहा था, उसका लिंक मिला मेरे को। उस लिंक के थ्रू मैंने अटेंड की वो सेशन। उसमें साजन सर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द माइनेट स्कूल होल प्रोसेस एंड व्हाट क्या-क्या होंगे। देन मैं टेक्निकल चीज़ों के थ्रू मतलब मैंने थर्ड ईयर से अपना मतलब पढ़ाई शुरू कर दी थी, पाइथन एंड एसक्यूएल एंड ऑल। बिकॉज़ मेरे पास एक इंटर्नशिप नहीं था, एक मतलब वर्क एक्सपीरियंस या फिर मेरा रिज़्यूमे पूरा खाली था। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन एमएस टू वर्क अपॉन माय रिज़्यूमे। लाइक मुझे वहाँ पे कुछ इंटर्नशिप मिल सके या मतलब बिकॉज़ माय आईआईटी स्कूल हैज़ assured that it will provide internship. So and second was मेरा कोई भी मतलब थर्ड ईयर में मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मॉक इंटरव्यू लेने के लिए मैंने माय आईआईटी स्कूल जॉइन किया था। तो इट हेल्प्ड मी very much because Tradens was the first company I sat for the interview. In the first interview only I got selected. So all credit goes to माइनॉरिटी स्कूल because before my Tradens मैंने माइनॉरिटी स्कूल में 4-5 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मतलब मैंने क्या-क्या गलती कर रहा था, वो जो भी सुपर मेंटर मेरा माइनॉरिटी स्कूल के ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने मेरा गलती आइडेंटिफाई की। मैंने वो गलती सुधार के फाइनली मैंने पूरा मतलब अपना फुल फ्लो में मतलब मैंने ट्रेडेंस में अपना इंटरव्यू दिया एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। So two things I liked the most. One is the mock interview part, and second thing was the worked upon my resume very much. मतलब मेरे को याद है कि 4-5 सेशंस रिज्यूमे के ऊपर चला था कि आपके रिज्यूमे में ये गलती है, ये गलती है। तो रिज्यूमे के बहुत काम किए। और थर्ड थिंग इज़ सुपर मेंटर्स, जो भी सुपर मेंटर थे, बहुत ही फ्रेंडली थे एंड दे गाइडेड अस थ्रू माय होल जर्नी। got it. So thanks for this feedback. और एक क्वेश्चन मेरे like you mentioned you got an in-house internship in My Analytics School only. Like you mentioned deep job, so it's My Analytics School only. So how was your work there? What kind of work you did in in-house internship? Honestly, it was not any different from real industry experience because our manager, the technical manager who was Javaskar sir, he was very professional. मतलब उन्होंने कोई रियल कंपनी में जैसे इंटर्नशिप चलता है, उन्होंने पूरे 2 महीने के लिए पूरे वैसे ही मतलब हम लोग को, क्योंकि पीयर में जो भी थे वो सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स थे। हम लोग 2 ही लोग थे जो मतलब एनआईटी के स्टूडेंट्स थे। बहुत अच्छा लगा कि मतलब आईआईटी स्टूडेंट्स के साथ मतलब काम करके, एंड जो भी मतलब मेरा हम लोग का प्रोजेक्ट था वो भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था, जो कि एंटी चीटिंग मैकेनिज्म के ऊपर था। सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय इंटरव्यूज। So that's really an achievement, Sabyasachi. Like you set for your very first interview and you got selected. Like if I talk Yes. about my journey, my first interview was in Dolat Capitals in full time in campus placement. So there I got rejected because 4 people were sitting there and they were like, I also did give mock interviews, but still when you go for your first interview तो एक बहुत ज़्यादा pressure होता है, मतलब you have to settle your nerves. तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था दौलत कैपिटल्स में, सेकंड राउंड के लिए मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद लाइक आई सेटल्ड माय नर्व्स, आई आल्सो हैड वर्ड्स विद साजन भैया, ही वाज माय मेंटर एट दैट टाइम। Then I set for Bank of America, EXL, I converted those. Then I applied for off-campus internship. There I converted almost every company. And then product role I converted, that was also off-campus. So first interview, it's a really a great achievement that you set for your first interview and you cracked it. So I wish you all the very best for your professional journey, which is about to start. You're in your college final year. So recommend you party hard and be in touch. So thank you so much, Sabes. Thank you, sir. Thank you, my IIT school, for this great experience.